नमस्कार। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है जो कि IIT-JEE 2013 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन आपका है कि इफ 3 to the power x is equal to 4 to the power x minus 1 then x is equal to। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये हमें बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन है 2 times log of 2 to the base 3 whole divided by 2 times log of 2 to the base 3 minus 1। सेकेंड ऑप्शन है 2 by 2 minus log of 3 to the base 2। थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन आपका है 1/1 minus log of 3 to the base 4। एंड लास्ट ऑप्शन जो डी है वो है 2 into log of 3 to the base 2 whole divided by 2 times log of 3 to the base 2 minus 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ हमें चेकआउट करना पड़ेगा ऑप्शन वाइज, क्योंकि सभी में अलग अलग बेस है। यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 4 है, अगेन यहाँ पे बेस 2 है। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। आपका दिया गया है ये सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन। आइए अब इसका सॉल्यूशन ऑप्शन वाइज देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन यहाँ पे बेस 3 दिया हुआ है, तो हम इस एक्सप्रेशन में बेस 3 लेकर लॉग लेंगे। गिवन 3 to the power x is equal to 4 to the power x minus 1। This can be written as 4 can be written as 2 to the power 2 into x minus 1, and this can be written as 2 to the power से पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 into x minus 1, that is 2x minus 2। Taking log on base 3 both side, taking log on base 3 both sides, we have log of 3 to the power x to the base 2 is equal to log of 2 to the power 2x minus 2 to the base 3। हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा कि log of m to the power n to the base a can be written as n times log of m to the base a, provided a should be greater than 0 and a is not equal to 1 and m should be greater than 0। So this expression can be written as x times log of 3 to the base 3 is equal to, here this factor comes out here, so 2x minus 2 into log of 2 to the base 3। इसका वैल्यू जो है वो 1 होता है एज log of a to the base a is equal to 1 provided a greater than 0 and a is not equal to 1। So this becomes x is equal to 2x times log of 2 to the base 3 minus 2 times log of 2 to the base 3। आप इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं और इस x को इधर ट्रांसपोज करते हैं। we have 2 times log of 2 to the base 3 is equal to 2x log of 2 to the base 3, और x उधर जाएगा तो माइनस होगा तो माइनस x। Here we can take x as a common, so x into
2 times log of 2 to the base 3 minus 1, और here is 2 times log of 2 to the base 3. So x का जो वैल्यू होगा x is equal to this upon this whole factor. So 2 times log of 2 to the base 3 whole divided by 2 times log of 2 to the base 3 minus 1. So option A is correct. Therefore A is correct. Correct. Now coming to option B. Here we can see here base is given to be 2. So taking log in this equation on base 2, so we can write taking log on base 2. So log of 3 to the power x to the base 2, log of 3 to the power x to the base 2 is equal to log of 2 to the power 2x minus 2 to the base 2. Here we can, this x comes here and this factor comes here. So x into log of 3 to the base 2 is equal to 2x minus 2 into log of 2 to the base 2. यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है जो कि ऑलरेडी पहले डिस्कस हो गया है, ये चीज़ें हमने इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे इस्तेमाल किया है. अब इसका वैल्यू भी 1 होगा बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम. So this is 1, so this becomes x into log of 3 to the base 2 is equal to 2x minus 2 into 1. किसी भी फैक्टर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए ये इतना ही रह जाएगा. नाउ transfer this minus 2 into left side and this term into right side, transposing the terms. So यहाँ minus 2 है तो उधर जाएगा तो 2 होगा and this becomes 2x, और इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस x into log of 3 to the base 2. So यहाँ पे आप x कॉमन ले सकते हैं, x into 2 minus log of 3 to the base 2. So this is 2. So यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 upon this factor, that is 2 minus log of 3 to the base 2. ये आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, यहाँ पे वही वैल्यू आया है. So this option is also correct. Therefore B is correct. B is correct. B is correct. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी बेस 2 है और इस लास्ट ऑप्शन में बेस 2 रखा गया है. इट मीन्स कि अगर B सही होगा तो D ऑटोमेटिक अपने आप में गलत हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू नहीं आया है बेस 2 रखने पर. सो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है. अब थर्ड ऑप्शन सी को टेस्ट करते हैं कि क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है. नेक्स्ट अब थर्ड ऑप्शन के लिए यहाँ पे बेस 4 है तो अब हम इसको यूज ना करके हम यहाँ पे केवल इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और लॉग लेंगे बेस 4 पे, क्योंकि यहाँ पे बेस 4 दिया गया है. तो टेकिंग लॉग ऑन बेस 4, तो आपका होगा log of 3 to the power x to the base 4 is equal to
log of 4 to the power x minus 1 to the base 4। यहाँ पे अगेन हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं और उसको हम लिख सकते हैं x इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4 इज इक्वल टू, और सेम प्रॉपर्टी से ये टर्म लिखाएगा x माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 4, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 4, और इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 1 होगा बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। सो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। सो x इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस 1 होगा, और x माइनस, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस होगा x इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4। सो यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4। सो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा होगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस लॉग ऑफ 3 to the base 4, which is option C. So this option is also correct. So therefore option C is correct. So इस क्वेश्चन में हमारा 3 ऑप्शन सही है, A, B, C, और हमारा ऑप्शन जो D होगा वो गलत है। धन्यवाद।